Hello everyone. Today my video is for class 12th students. I am starting with book number 1, which is Accounting for Partnership Firm. As you all know that in class 12th we have 3 books. One is Accounting for Partnership Firm, one is Accounting for Company, and the third one is Financial Statement Analysis. Since we have 3 books, so the syllabus is quite vast. I'm starting up with volume 1, book 1, which is Accounting for Partnership Firm. So, chapter 1 of this book is generally we call it as fundamentals. The short form is Fundamentals of Partnership Firm. So this chapter, Fundamentals of Partnership Firm, it gives us the gist about the whole partnership firm, like how partnership firm is formed and what are the different accounting treatments which are being done by the partners when they form their partnership firm. And when they form the partnership firm, what are the different provisions of the Partnership Act that is applied to the partners. So this is what we are going to understand in this specific video. So, in this video, I'm starting with the very basic theory. I'm giving you some theory, which is, it's just a quick recap. While you will be appearing for your board exam, you can just go through my video and you can just get to know about the basic theory of partnership so that you don't need to get into the book and get fumbled. आपको पूरी बुक पढ़ के फंबल होने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर 1 की थ्योरी. आप मेरी ये वीडियो देख के अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं बिफोर यू अपीयर फॉर एन एग्जाम. सो आप मेरी कोई सी भी वीडियो देखेंगे उसमें मैं पहले आपको कुछ पॉइंटर्स थ्योरी के दूंगी, उसके बाद मैं उस पर प्रैक्टिकल शेयर करूंगी ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई नेवर बिलीव दैट कि आप कुछ भी रटो. आई ऑलवेज बिलीव कि दैट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन यू शुड राइट इट और देन यू शुड सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सेम. I'm starting with first of all the meaning of partnership firm. I hope you all must be aware of partnership firm. What do we mean by partnership firm? First thing that you should know is that partnership firm is defined by Indian Partnership Act 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया था. इस एक्ट ने पार्टनरशिप फर्म को डिफाइन किया है. और पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? पार्टनरशिप फर्म का बेटा मतलब होता है कि इट इज़ that form of business where, or you can say that partnership is a business which shows relationship between two or more people who share profits and losses in agreed ratio. That means partnership जो है, it is a relationship between two or more people who are ready to share their profits and losses in an agreed ratio. मान लो एक बंदा है राम, एक बंदा है श्याम, और ये दोनों जो हैं they have joined their hands together and they have agreed to form a partnership firm because they are ready to share their profits and losses in an agreed ratio. कि भाई एक 1:1 में हम अपने profits and losses को share करेंगे and now we are ready to start a partnership firm. Okay, see, as we know that you have already studied a business entity concept in class 11th, so you must be very aware that business and owner, any sort of business and any owner, they both are different entities. दोनों ही different entities होती हैं. ठीक है, both business and owner are different entities. दोनों ही different entities हैं. Both are separate from each other. Business has its own things and owners have their own things. Both are different. So similarly, if we talk about the partnership firm, even partnership firm is also but in partnership firm also we apply the same concept that partnership business and owners are different. Fine. Apart from this, the next pointer that you have to keep in mind, that is related to the partnership agreement.
partnership, see, when you come into the partnership firm, or you can say when your partnership firm comes into an existence, it is very important that it should be followed by an agreement. एक agreement होना चाहिए partners के बीच में. So आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है और पार्टनरशिप जो है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये एग्जिस्टेंस में बेटा तभी आती है बाय एन अग्रीमेंट. एक अग्रीमेंट की हेल्प से ही ये एग्जिस्टेंस में आती है, ईदर रिटन अग्रीमेंट की फॉर्म में या आप ओरल अग्रीमेंट की फॉर्म में. कोई सा भी अग्रीमेंट आप बनाइए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब आपने क्या बनाया है, एक अग्रीमेंट बनाया है. पार्टनरशिप कम्स इन टू एन एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट. अब पॉइंट ये है कि वो अग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, वो अग्रीमेंट ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है. ओरल अग्रीमेंट का क्या मतलब है कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, दोनों मान गए कि भाई ओरली दे हैव डिसाइडेड द टर्म दैट वी बोथ आर पार्टनर्स, वी आर रेडी टू शेयर देयर आर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 1:1. So orally we are now orally we have decided the terms, and this is an oral agreement stating that we both are partners of the firm. But it doesn't mean that they don't have to get registered themselves. They have to register themselves, but registration is a different and forming an agreement is different, because agreement ensures that you are deciding the terms कि किन किन terms के ऊपर आप अपने profits and losses को share करने के लिए ready हैं, या आपके being a partner क्या क्या terms रहेंगे आपस में. ठीक है. और रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जब तक आप अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो फर्म आपकी रजिस्टर नहीं होगी. तो रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट एंड फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज डिफरेंट. अग्रीमेंट मीन्स वेयर पार्टनर्स आर डिसाइडिंग देयर टर्म्स. Clear? Next important thing, before I move into any sort of topic of this chapter, the most important thing that you should know about this chapter is कि partners को भाई पहले मिलता क्या क्या है. पे हम क्या करते हैं, वी जनरली मूव स्टेप बाय स्टेप. जो स्टेप्स हमें बुक्स में दिए हैं हम उसी के साथ आगे आगे उन्हीं टॉपिक्स के साथ बढ़ते चले जाते हैं. अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो हमें ये पहले समझना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर दो पार्टनर मेरे हैं, सीता है और गीता है, अगर मेरी दो पार्टनर्स, तो इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगा क्या क्या भाई, व्हाट दे आर लायबल फॉर, क्या क्या इन्हें मिलेगा. अब देखो ये दोनों अगर पार्टनर्स है तो इन्हें प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. अगर ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है. हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है. कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस. बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया. अब ये दो पार्टनर्स बने, इन दोनों ने अपने अपने हिस्से का पैसा बिजनेस में लगाया, कैपिटल लगाई, तो बदले में तो इन्हें बिजनेस कुछ तो देगा. तो बदले में बिजनेस इनको क्या देगा, बदले में बिजनेस इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा. सो एक तो पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, प्लस इन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर बदले में उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. अब अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट का शेयर, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलेगी सैलरी. पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं ये दे आर द ओनर्स ऑफ द फर्म, दे आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. सो पार्टनर्स आर ऑलवेज इंटाइटल्ड टू सैलरी, ईदर यू कैन से रेम्यूनरेशन, किसी भी तरीके की कोई भी पेमेंट, या हम इन्हें कमीशन भी दे सकते हैं. ठीक है, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, रेम्यूनरेशन दे सकते हैं. तो दे आर इंटाइटल्ड टू एनी सॉर्ट ऑफ सच पेमेंट. कोई भी इस तरीके की पेमेंट पार्टनर्स को मिल सकती है. ठीक है. और इसके अलावा पार्टनर्स ने अब हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया. अगर पार्टनर ने, एक पार्टनर ने, कॉन्सेप्ट मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ, लोन का कॉन्सेप्ट. सो अभी के लिए बस मैं ऊपर से जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. सो ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो भी पार्टनर्स को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. बट इन सम केसेस पार्टनर्स गेट द इंटरेस्ट ऑन लोन, और इन सम केसेस पार्टनर्स हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन. सो देयर आर टू केसेस इन इंटरेस्ट ऑन लोन कि एक तो पार्टनर्स को या तो एक केस में पे करना है और एक केस में पार्टनर्स को रिसीव करना है. तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो ये पहली मैंने जो तीन चीज़ें लिखी हैं, ये तीन ऐसी पेमेंट्स हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं. सीता और गीता अगर पार्टनर्स हैं तो इन दोनों को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म
टर्म्स ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड। और उसके अलावा इन दोनों को दे बोथ विल बी इंटाइटल्ड टू गेट द इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा इफ इन केस दे गिव द लोन टू द फर्म, बट दे आर इंटाइटल्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन इफ इन केस they have taken loan from the firm. So interest on loan has different aspects. इसके different aspects हैं जो कि हम इसी वीडियो में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इसके अलावा पार्टनर्स को कुछ और नहीं मिलेगा, इसके अलावा पार्टनर्स को पे करना है। अब देखो, हमने एक टर्म पढ़ी थी क्लास 11th में जिसको हम बार बार कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर। ओनर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी फर्म से या अपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। और अगर उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी कौन देगा? ओनर देगा। तो इसीलिए अगर पार्टनर्स कोई सी भी ड्रॉइंग्स करते हैं सो दे आर इंटाइटल्ड टू पे। ये पार्टनर्स को पे करना है। पे करना है मतलब फर्म को देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो मैंने वो कीवर्ड्स आपको क्या दिए हैं? एक तो मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर सीता गीता में जो बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्हें अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, इन तीनों में से कोई सी भी पेमेंट जिसके लिए दोनों लायबल हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ये फर्म से लोन ले रहे हैं तो ये इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन अगर फर्म इनसे लोन ले रही है तो फर्म इन्हें इंटरेस्ट पे करेगी। इसके अलावा आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए अपनी फर्म से तो दे आर इंटाइटल्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट ड्रॉइंग्स। सो ये सारी पेमेंट है, ये सारी आप कह सकते हो कि पेमेंट्स है या जो कुछ इनमें से पेमेंट्स है जो पार्टनर्स को पे करनी है, और इनमें से कुछ ऐसी अमाउंट्स है जो पार्टनर्स ने रिसीव करनी है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि बेसिक थ्योरी में ना हमें सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है। वी डोंट हैव टू गेट इन टू मच डेप्थ। जितना हम डीप में जाएंगे उतनी चीज़ें हमारी थ्योरी की कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी, लेकिन हमारे तो सिलेबस में थ्योरी इतनी ज़्यादा आती नहीं है। हमें सिर्फ ये बेसिक पता होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल, राइट। सो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे पार्टनरशिप अग्रीमेंट की, मैं इस पॉइंट को यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहूँगी। मैं यहीं से आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी, वो ये है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ। मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप फर्म तब आएगी एग्जिस्टेंस में जब एक अग्रीमेंट बनेगा, और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये अग्रीमेंट जो है, दिस अग्रीमेंट कैन बी अ रिटन एग्रीमेंट एज वेल एज इट कुड बी यू कैन से ओरल अग्रीमेंट। ठीक है, अब मैं यहीं से आपका एक पॉइंट उठा के आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए चलो दूसरा पेन यूज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में तब आएगी जब उसमें एक अग्रीमेंट होगा। ईदर इट्स रिटन अग्रीमेंट और इट्स एन ओरल अग्रीमेंट। अब यहाँ से जो मुझे की पॉइंट आपको बताना है वो अमंग द पार्टनर्स के बीच में जो भी मेरा रिटन एग्रीमेंट होगा, इट विल बी नोन एज पार्टनरशिप डीड। उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। तो आपको ये पॉइंटर भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग्स द पार्टनर विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड। दो पार्टनर्स हैं, सीता गीता हैं, दोनों रेडी हो गई हैं बिजनेस में पैसा लगाने के लिए और अपने प्रॉफिट्स लॉसेस को इक्वली शेयर करने के लिए। अगर ये दोनों अग्रीड हैं और ये दोनों चाहती हैं कि एक रिटन अग्रीमेंट बनाया जाए, तो उस रिटन अग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? उस रिटन अग्रीमेंट को हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट लेके आती है हमारे लिए पार्टनरशिप डीड। मैं अगर बात करूं बेटा पार्टनरशिप डीड की, कभी कभी क्या होता है कि ये पार्टनरशिप डीड जो है ये हो जाती है एब्सेंट। तो जिसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मेरे ये 6 पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इसको अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम रिलेटेड टू दी दिस थिंग, क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के ऊपर हमारा इस कुछ एक क्वेश्चन जो है वो आता भी है। तो इसलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कभी कभी कि पार्टनरशिप जो डीड है हमारी,
एब्सेंट हो जाती है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का ये मतलब होता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं दे समटाइम्स दे दे डू नॉट अग्री टू प्रिपेयर एनी सच एग्रीमेंट। कभी कभी वो मानते नहीं है एग्रीमेंट बनाने के लिए, और जब भी पार्टनर्स ऐसा होता है ना कि बेटा अग्रीमेंट के लिए नहीं मानते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में ना इनके ऊपर सिंपली पार्टनर्स के ऊपर सिंपली प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई कर दिया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे प्यारी सी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, whenever there is absence of partnership deed, what happens in that case, directly the provisions of Indian Partnership Act 1932 it is applied। ये सीधा सीधा पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स के बीच में नहीं बन रहा है, उस केस में उनके ऊपर डायरेक्टली प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। और जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होता है तो 6 प्रोविजंस है जी जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने हमें दिए हैं। वो 6 प्रोविजंस जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने हमें दिए हैं, वो 6 प्रोविजंस क्या हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो 6 प्रोविजंस ये हैं कि जस्ट अ मोमेंट, वो 6 प्रोविजन हमारे ऐसे रहेंगे कि उसमें इसमें एक पार्टीशन बनाते हैं जस्ट टू इंश्योर, yeah, this much is fine I think, and for this we could have taken a much bigger one, थोड़ा बड़ा सा ले सकते हैं हम, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो 6 प्रोविज़न मैं आपको बनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वो 6 प्रोविजंस क्या हैं, देखिए मेरा सबसे पहला प्रोविज़न ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी पार्टनरशिप डीड। नॉट पेड मीन्स नॉट गिवन टू द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को नहीं दिया जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की अगर मैं बात करूं, दे आर गिवन इक्वली टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सीधा सीधा पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे पार्टनर्स के ऊपर। और प्रोविजन क्या है कि आईओसी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, विल नॉट बी पेड टू पार्टनर्स, विल नॉट और नॉट पेड टू पार्टनर्स लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि नॉट पेड का क्या मतलब है, टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांट दिया जाएगा अमंग्स द पार्टनर्स। और यही अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, सो पार्टनर्स विल नॉट इवन पे, नॉट एप्लीकेबल कह सकते हो, पार्टनर्स विल नॉट इवन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ना तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेंगे, नॉट एप्लीकेबल से अच्छा लिख देती हूँ नॉट चार्ज्ड। नॉट चार्ज्ड मीन्स कि पार्टनर्स को देना ही नहीं है, ना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट दिया भी जाएगा तो वो इक्वली दिया जाएगा। और कोई किसी भी प्रकार की सैलरी, किसी भी प्रकार की रेम्यूनरेशन, किसी भी प्रकार की कमीशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। नॉट पेड, किसी भी प्रकार की पेमेंट पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। और फिफ्थ केस जो है हमारा, कहते हैं कि अगर मान लीजिए पार्टनर्स आर इंटरेस्टेड टू एडमिट एनी न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर वो किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट ऑल पार्टनर्स कंसेंट। जब तक सभी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है तब तक किसी नए पार्टनर को भी एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट है होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का ना जो केस है उसमें 2 केसेस बनते हैं, इसलिए मैं अभी आपको इन डेप्थ कुछ भी नहीं बता रही हूँ आईओएल के बारे में, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी और सबसे पहला प्रैक्टिकल टॉपिक लूँगी वो मैं आईओएल ही लूँगी, तो इसीलिए मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ। आईओएल के केस में आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि अगर पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट, उस केस में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से पार्टनर्स को आईओसी नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को सिर्फ प्रॉफिट लॉस मिलेगा, वो भी इक्वली मिलेगा। आईओडी उनसे नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन उनको नहीं दी जाएगी। एडमिशन ऑफ अगर कोई न्यू पार्टनर करना है, इट कैन नॉट बी डन विदाउट
कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एंड जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो दिया जाएगा, बट वो सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। बस आपको IOL के केस में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि IOL विल ओनली बी पेड और रिसीव्ड एट द रेट 6% per annum, or it will be charged at the rate 6% per annum. That's it. This is all about your पार्टनरशिप डीड। ये सब आपकी पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है, ठीक है, कि अगर मेरी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में बेटा ये होगा कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इन सारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की ये 6 प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ेगा, इन 6 प्रोविजंस को मानना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। नाउ आई एम स्ट्रेट अवे मूविंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सब थोड़ा सा इट्स अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। कभी कभी क्या होता है, यूजुअली चिल्ड्रन दे गेट confused between the concept of interest on लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो थोड़ा सा बच्चों को घुमा देता है। घुमा देता मतलब कि बच्चे जो हैं वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 केसेस हैं। सबसे पहला है कि लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर मीन्स कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। और दूसरा केस क्या है, क्या है कि लोन बाय फर्म टू पार्टनर। एक है लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, और सेकंड केस मेरा क्या है कि लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब हम इन दोनों केसेस को समझेंगे डेप्थ में कि क्या मतलब है इन केसेस का। तो अगर मैं इन केसेस को समझाऊं तो सबसे पहले मैं लेती हूँ लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर मैं कहूँ कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म है जी, कि फर्म ने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अब समझते हैं इस बात का मतलब। इसको समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। देयर आर 2 पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B। दे हैव फॉर्म्ड वन पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म की है। बोथ ऑफ देम हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप फर्म एंड this firm, let me just take up the example again. मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं आपके A B, ठीक है। दोनों ने एक नई फर्म फॉर्म की है जिस फर्म का नाम है AB लिमिटेड, ठीक है। फर्म का नाम है AB लिमिटेड। अब मान लीजिए कि A ने एज अ पार्टनर ही हैज़ गिवन लोन टू फर्म, ठीक है। A एज अ पार्टनर ही हैज़ गिवन लोन टू फर्म। अब आप बिल्कुल शांत दिमाग से एक बात सोच के देखिए, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो लोन फर्म के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, और उस लोन के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट भी पे करना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए हमेशा क्या रहा है, एक एक्सपेंस रहा है। तो ये हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, वी हैव टू सिंपली अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। हमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करने हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। हमें सिर्फ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए। उसके अलावा जिसको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया उसे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं आता वो क्लास 12th में भी उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। और मेरी आपसे सजेशन रहेगी कि अगर आपके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं है, सो यू कैन गो थ्रू माय क्लास 11th रूल एंड ऑफ डेबिट क्रेडिट वीडियो, ताकि आपका बेसिक रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्लियर हो, ताकि आप उसे यहाँ ईजिली अप्लाई कर सकें। ओके, सो अब इससे लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि फर्स्ट केस विच वी हैव टेकन, इट इज़ रिलेटेड टू लोन बाय पार्टनर टू फर्म। लोन बाय पार्टनर टू फर्म मीन्स कि ए ने एज अ पार्टनर फर्म को लोन दिया था, ठीक है। अब हमें ना इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ना, स्पेशली इन दिस केस वेयर द लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू फर्म, वी हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, ठीक है, कि दिस IOL इज पेड एट रेट विच इज अग्रीड बाय द फर्म, ठीक है। सबसे पहला पॉइंटर मैं इसके बारे में आपको क्या बता रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली दैट दिस IOL जो है बाय पार्टनर is allowed
at the rate of interest agreed by पार्टनर। मान लीजिए पार्टनर ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री किया है कि भाई इस रेट पे होना चाहिए, तो उसी रेट पे IOL चार्ज किया जाएगा, पहली बात। सेकेंड पॉइंटर जो आपको इस केस में याद रखना है वो ये है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि IOL नहीं दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि इट विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है तो IOL जो है वो 6% पर एनम के ऊपर चार्ज किया जाएगा। इट विल बी चार्ज्ड, ठीक है। और एक बात जो हमें इस चैप्टर में एज अ बेसिक बिल्कुल याद रखनी है वो ये है कि क्या चीज़ मेरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और क्या चीज़ मेरी एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, हमें ये भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे समझना पड़ेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म जो होता है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हो तो उस रेट पे करेंगे, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 6%, उसे हम 6% कंसिडर करेंगे। और अब मैं बात करती हूँ इसी कॉन्सेप्ट में कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये रहेगा कि सबसे पहले तो मेरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सिंपल टर्म्स पे जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये लिखिए लोन बाय पार्टनर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। टू लोन बाय पार्टनर, सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है। इसका रीजन क्या है और ये किस चीज की एंट्री है? इट इज फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि पेमेंट हो गई है इंटरेस्ट की। ये मत समझना कि मैम ने तो सिर्फ लिख दिया, तो मैम के समझाने में और बुक में लिखे होने में क्या डिफरेंस है। नहीं, अभी मैं आपको इन एंट्रीज के पीछे लॉजिक बताऊंगी ताकि आप उसे रटे नहीं, समझे। मेरा मानना ये है कि जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जिसे समझ में आ गया कि ये क्यों डेबिट हुआ, ये क्यों क्रेडिट हुआ, उसको कभी भी रटने की अकाउंट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगी और रीज़न के साथ एक एक चीज़ आपको मैं स्पेसिफाई करूंगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब इस बात का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब समझेंगे कि मैम ने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ क्यों किया है। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले मेरी जर्नल एंट्री मैंने पास की है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब है कि फर्म ने लोन लिया था पार्टनर से। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म के लिए तो वो पार्टनर्स लोन एक लायबिलिटी हुआ। और जब भी हमारी लायबिलिटी, हमने मॉडर्न रूल्स पढ़े हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े हैं, जब भी मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो बेटा हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसीलिए मैंने लोन को यहाँ क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग इज कि इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। पे करना है तो वो फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। आई होप इट इज क्लियर। आई हैव सिंपली अप्लाइड द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं बार बार बता रही हूँ, जिसे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं है वो मेरी क्लास 11th की रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की वीडियो को देख सकता है और उसको समझ सकता है। वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, गिनी सूरी पे। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट एंट्री की, लोन बाय पार्टनर टू कैश। अगर मैंने किसी लायबिलिटी की बेटा पेमेंट कर दी, इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी। मैंने किसी लायबिलिटी की, अपने लोन की अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई। और अगर मेरी लायबिलिटी कम होती है तो वो क्रेडिट होती है, वो डेबिट होती है। इसीलिए मैं क्या लिखा है नेक्स्ट एंट्री, लोन
टू कैश और बैंक। और मैंने पेमेंट कैसे की होगी, कैश या बैंक की फॉर्म में की होगी। अगर मैंने कैश या बैंक की फॉर्म में पेमेंट की है तो कैश मेरे लिए एक एसेट है, और एसेट जब कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। इसीलिए मैंने ये एंट्री की है कि लोन बाय पार्टनर टू कैश, कि भाई लोन के अगेंस्ट मैंने पैसा दे दिया, फर्म ने पैसा दे दिया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो है P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपको अच्छे से याद होगा कि जब भी आप क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी। मैं सिर्फ उसका एक सिंपल एक्सट्रैक्ट बना के आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब भी आप किसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते थे तो वो एज एन एक्सपेंस आप हमेशा यहाँ लिखते थे कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सिमिलरली फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, और फर्म के लिए वो लोन एक उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस तो हमेशा मेरा P&L से चार्ज होता है। तो इसीलिए मैंने उस एक्सपेंस को कहाँ से चार्ज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया है। और मैंने सिंपल एंट्री को यहाँ से उठा लिया है, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। आई होप द concept behind these three journal entry is clear to all of you. It is just simply the rule of debit credit. अगर आपको पता है कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी, तो आप इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि P&L के डेबिट साइड पे मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन आता है हमेशा, तो आप उसको हमेशा डेबिट ही करेंगे और आप उसकी एंट्री P&L टू इंटरेस्ट ऑन लोन ही करेंगे। ठीक है, अब इन सब में ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। अभी के लिए आप सिर्फ यहाँ पे अपने पास एक नोट की तरह लिख लेंगे इस पॉइंट को, और इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए बस अभी आप ये नोट बना के यहाँ लिख लीजिए कि IOL जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसे हम कहते हैं IOL, प्लीज माइंड इट, IOL by partner, that means interest on loan which is paid by the partner is charge against profit। ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बस अभी मैंने आपको क्या कहा कि आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। कि IOL अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जिसे हम P&L से चार्ज कर रहे हैं, दैट्स इट। देखो मैंने उसको P&L से चार्ज किया है। आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि मैम इज़ नॉट रिप्लाइंग ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड माई नंबर टू यू, यू कैन आस्क मी। सो कभी भी आप यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैम प्लीज़ रिपीट दिस कॉन्सेप्ट, सो यू कैन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. There are comment box which is available, so you can easily put up your queries in the comment box. Fine. Now coming forward to the another thing which is the next case. ये तो मैंने अभी एक केस उठाया था कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब इसी के कंट्रास्ट में अगर मैं आपको सेकंड केस करा दूंगी लोन बाय फर्म टू पार्टनर, तो आप इसको अभी बड़े इजीली समझ पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सो आई एम टेकिंग अप द सेकंड केस विच इज माई इंटरेस्ट, और या फिर आप कह सकते हो लोन बाय फर्म टू पार्टनर। दैट मीन्स कि फर्म ने लोन दिया है अब पार्टनर को। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि थिंग्स विल बी डिफरेंट, थिंग्स विल बी opposite to what we have done in case number 1. So how it is different, let's understand. अब इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी इसके ऊपर लगता है ना बेटा, अब इस एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या मतलब है। ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि x ले लो चलो और y ले लो। x और y मेरे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी फर्म है XY लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर अपनी एक फर्म बनाई है XY लिमिटेड। अब क्या हुआ है जी, y को चाहिए लोन, तो XY लिमिटेड मतलब फर्म ने हैज़ गिवन लोन टू y, फर्म ने लोन दिया है y को, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, तो अगर फर्म ने उस पार्टनर को लोन दिया है तो ये लोन जो होता है ना फर्म के लिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, है ना। तो वो जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है पार्टनर के ऊपर, वो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो होता है
it is charged at an agreed रेट, एक अग्रीड रेट के ऊपर उस इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है, ठीक है। और अदरवाइज ये भी मैं आपको एक स्पेसिफाई कर दूं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो है इट इज चार्ज एट द रेट, अग्रीड रेट, ठीक है, विच इज अग्रीड बाय पार्टनर, जो पार्टनर अग्री करता है। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट चार्ज्ड, वरना ये चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये पार्टनर इस लोन का, क्योंकि ये लोन किसने लिया है, पार्टनर ने लिया है फर्म से, तो ये पार्टनर ही डिसाइड करता है कि किस रेट पे वो वापस करेगा। लेकिन अगर वो रेट डिसाइड नहीं करता है तो इट इज़ नॉट चार्ज्ड, वो चार्ज नहीं किया जाता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 इट डजंट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आपने ये वाला इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर आपका पार्टनर आपसे लोन ले रहा है तो आपने ये चार्ज करना है। इट इज़ नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट। ये मैं आपको लास्ट में ना एक रिकैप्चुलेट करते टाइम एक पॉइंटर बताऊंगी, आप उसे ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उसकी कोई अग्रीड परसेंटेज नहीं है, कोई अग्रीड रेट नहीं है, वो पार्टनर की मर्जी है, उसकी मर्जी के हिसाब से रेट चार्ज किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इट शुड बी क्लियर टू यू। वो क्या होनी चाहिए जर्नल एंट्रीज, देखते हैं, आ जाइए। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हम इस केस में पास करेंगे वो हमारी रहने वाली है, it is going to be, let me just take up the journal entry. The journal entry is going to be number 1. अभी मैं समझा नहीं रही हूँ, I'm just giving you the journal entry, but don't worry, I'll explain it. Partners capital account debit to interest on loan to partner, ठीक है। This will be my first entry. And this first entry की relevance क्या रहेगी मेरी? This first entry's relevance is going to be, क्यों मैंने ये एंट्री पास की है वो भी मैं बताऊंगी, और ये किस चीज़ की एंट्री है पहले मैं लिख देती हूँ। इट इज़ फॉर चार्जिंग IOL, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ बट यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म इन द एग्जाम, ठीक है। टू पार्टनर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड एंट्री विल बी कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी मैं बताऊंगी कि हमने ये एंट्री भी क्यों पास की है, ठीक है। इफ IOL इज रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद मेरी थर्ड एंट्री रहने वाली है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये एंट्री किसके लिए होगी, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L अकाउंट, ऐसे लिख लेते हैं इसको, बात खत्म, सिंपल एंड सॉर्टेड। देखिए इस केस में हमने ये 3 जर्नल एंट्रीज पास की हैं, बट इन 3 जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या है आज समझेंगे। इस 3 जर्नल एंट्रीज का मतलब, देखिए ये केस है जहाँ पे पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है। अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उस केस में क्या 3 जर्नल एंट्रीज ऐसी हैं या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो फर्म करेगी। फर्म क्या करेगी, सबसे पहले फर्म लिखेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ध्यान से समझिए मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, ये फर्म के लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस में फर्म रिसीव कर रही है। तो अगर फर्म कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव करती है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है, फर्म इज़ रिसीविंग दिस पेमेंट, एंड इफ फर्म इज़ रिसीविंग एनी इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये रिसीव करने का मतलब क्या है कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, अगेन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट इज अप्लाइड, कि इसका मतलब है फर्म के पास पैसा आ रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम, और जब भी फर्म की इनकम बढ़ती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर से आ रहा है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। और हमने पार्टनर के अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पार्टनर ने ये लोन लिया है फर्म से। अब उसका अकाउंट जो है वो क्या हो गया है, ही हैज़ टेकन, एंड दिस अमाउंट विल बी चार्ज्ड अगेंस्ट हिज कैपिटल अकाउंट।
जब आपके अकाउंट में पैसा, लॉजिक लगाइए, जब आपके अकाउंट से कोई पैसा चार्ज होता है मतलब कटता है तो वो डेबिट होता है, और जब आपके अकाउंट में कोई सा भी पैसा आता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस लॉजिक को हमें याद रखना है कि ये पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो अगर ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज किया जा रहा है और उसे इस पैसे को भरना है, तो उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और जब इसके अगेंस्ट हमें पैसा वो दे देगा पार्टनर, तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और हमने इसको डेबिट यहाँ क्यों किया, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पार्टनर ने आपके कैपिटल अकाउंट से हमें पेमेंट मिलने वाली है, तो ये मिलने वाली पेमेंट आगे मेरे लिए क्या है, एसेट है। एसेट जब भी बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। और अब नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ कि उस एसेट के अगेंस्ट मुझे पैसा मिल गया और मेरी ये एसेट कम हो गई। एसेट कम हो गई तो क्रेडिट हो गई, लेकिन अगर कैश मुझे मिल गया है उस एसेट के अगेंस्ट तो वो एक एसेट मेरी बढ़ भी गई, जिस वजह से मेरा कैश डेबिट हो गया। मुझे जो ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर के ऊपर ड्यू था, उसके कैपिटल अकाउंट से ड्यू था, वो मुझे मिल गया सेकेंड एंट्री में। और जब उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिल गया, उस इंटरेस्ट के पैसे को मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, पीएनएल अकाउंट में। आई होप इट इज़ क्लियर। जिसे नहीं समझ में आएगा, दैट पर्सन कैन आस्क मी अगैन इन माई that person can comment in the comment box. I will explain this topic again. और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये लास्ट एंट्री मैंने पीएनएल में क्यों एंटर की है, ध्यान से देखिए। ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम क्लास 11th में बनाते थे। और अगर मुझे कोई सी भी इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होती है तो इट इज़ ऑलवेज टेकन ऑन द क्रेडिट साइड। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हमने जो पार्टनर को लोन दिया था फर्म ने, उसके अगेंस्ट फर्म को पैसा मिल गया, इसीलिए हमने इसको क्रॉस पोस्ट कर दिया कि IOL टू पार्टनर टू PNL। और एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, PNL अकाउंट जो है इट रन्स ऑन द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलता है, जो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसीलिए जब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो उस केस में वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है, इसलिए उस इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट किया है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लोन बाय द फर्म एंड लोन टू द फर्म बाय पार्टनर। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर आप आज के आज समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत, एक साथ इसे समझ लेंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक तो आपको बताऊंगी चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट के बीच में डिफरेंस। तो उस वीडियो से भी आपका काफ़ी हद तक जो है पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल and my video also. And if in case you find any problem, you can write your doubts in the comment box. मैं उसको पढ़ के आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, चाहे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के शूट करूँ आपको टैग करके। ठीक है, सो ये इसको लॉजिक के साथ समझो। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं है, अभी तक मैंने वीडियो नहीं डाली है, मैं डाल देती हूँ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की वीडियो। आप पहले रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझिए, उसके बाद आप IOL के कॉन्सेप्ट के ऊपर आइए, उसके बाद आप इन रेलेवेंस को समझिए कि ऐसा मैम ने क्यों किया, क्यों मैंने इसको डेबिट किया, क्यों मैंने क्रेडिट किया। अगर आपको लॉजिक पता है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।